Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are good and safe. Today we are going to start psychoanalysis school of thought. Psychoanalysis is a Greek word. Psycho means soul and analysis means investigate, to investigate something. Psychoanalysis is a set of theories and therapeutic techniques, therapeutic methods related to the study of unconscious mind, which together form a method of treatment for mental disorders. Psychoanalysis believes that all people possess unconscious thoughts, feelings, desires, and memories. This discipline was established in the early 1890s by Austrian neurologist Sigmund Freud, who retained the term psychoanalysis for his own school of thought. Psychoanalysis एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें इनके बिलीवर्स का मानना है कि हमारी ऐसी थॉट्स होती हैं, कुछ अनकॉन्शियस थॉट्स जिनको कहा जाता है, अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, कोई ऐसी डिज़ायर्स होती हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज हमारी होती हैं जिनको हम अपने अनकॉन्शियस लेवल में भेज देते हैं ताकि वो रिवील ना हो सकें, ताकि वो किसी को पता ना चल सके। यानी वो थॉट्स, वो मेमोरीज जिनके साथ कुछ शेमफुल इवेंट्स जुड़े हुए होते हैं, शेमफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उनको आप सप्रेस कर देते हो, उनको आप सप्रेस करके अपने अनकॉन्शियस में भेज देते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड कि हर पर्सन के ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ ऐसी थॉट्स होती हैं, ऐसी फीलिंग्स होती हैं, ऐसी डिज़ायर्स होती हैं, ऐसी मेमोरीज होती हैं जो आप कॉन्शियसली किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, उनको आप सप्रेस कर देते हो, हिडन रखना चाहते हो, तो वो आप अनकॉन्शियस में भेज देते हो। ठीक हो गया। Psychoanalysis was later developed in different directions, mostly by students of Freud, such as Alfred Adler and Carl Gustav Jung, as well as by new Freudian thinkers such as Erich Fromm, Karen Horney and Harry Stack Sullivan. यानी सबसे पहले फाउंडर तो इसका जो था वो सिगमंड फ्रॉइड था। उसके बाद इसके काम को इसके दो स्टूडेंट्स अल्फ्रेड एडलर और कार्ल यंग ने कंटिन्यू किया इसके काम को, और उसके बाद न्यू फ्रॉइडियंस जिनमें एरिक फ्रॉम था, एरिक फ्रॉम, कैरन हॉर्नी और सुलेवान, ये तीन थे जिन्होंने न्यू फ्रॉइडियंस में जिन्होंने इसके काम को कंटिन्यू किया। ये सारे साइकोएनालिटिक थिंकर्स हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड वाज बोर्न ये सिगमंड फ्रॉइड आ गया। सिगमंड फ्रॉइड was born in 1856 and he died in 1939 in Freiburg. He belongs to a Jewish family. His great forefathers was Jews.
He belongs to a poor family, but he was a bright student. Sigmund Freud began reading Shakespeare when he was 8 years old, and he deeply admired that author's power of expression and understanding of human nature all his life. Freud also had an amazing gift for languages. कई तरह की languages उसको आती थी. Latin, Greek, French, Spanish, Italian, English, German. He entered school a year earlier than normal and was always at the head of his class at age 17. At age 17, he graduated. Until his final year of high school, Freud was attracted to a career in law or politics, or even in the military. He was impressed in Darwin's theory of evolution, aroused his interest. This theory aroused his interest in science, and he decided to enroll in the medical school at the University of Vienna in the fall of 1873. Freud enrolled in medical school in 1873. It took him 8 years to complete his program. According to Freud's own account, the person who influenced him most during his medical studies with Franz Brocke, who had along with Helmholtz University. Many important events happened in Freud's life about his time. In addition to making the decision to practice medicine, Freud was making a name for himself as a neuroanatomist. All these events were to have a significant influence on the development of Freud's career. ठीक है, ये थी जी हिस्ट्री सिगमंड फ्रॉइड की. अब हम चलते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ. सबसे पहले हम देखते हैं इसकी टेक्निक्स. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा एडिक्ट था, ड्रिंक बहुत करता होता था फ्रॉइड. इसकी सबसे पहले हम टेक्निक्स देखते हैं. कुछ टेक्निक्स बताई थी सिगमंड फ्रॉइड ने. जिनको कहा जाता है टेक्निक्स ऑफ साइको एनालिसिस. सबसे पहले है जी एनालिसिस ऑफ ड्रीम. सबसे पहले ट्रांसफेरेंस करते हैं हम. ये ट्रांसफेरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, काउंटर ट्रांसफेरेंस बताया हुआ है. ट्रांसफेरेंस बेसिकली is a technique, is a psychoanalytic technique in which person redirect their feelings to other person. Transference is basically redirection of feelings from one person to another. यानी आप ट्रांसफेरेंस क्या है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड कि आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों पे डाल देते हो. ठीक है, इसमें पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस भी होती है, नेगेटिव ट्रांसफेरेंस भी होती है, और ये काउंटर ट्रांसफेरेंस भी होती है. पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस क्या है कि पॉजिटिवली किस अपनी फीलिंग्स को आप यूज़ कर रहे हो दूसरों पे डाल के, वो पॉजिटिव टर्म्स में आएगा. अगर नेगेटिव आप अपनी किसी गलती को या किसी चीज़ को दूसरों पे डाल रहे हो तो वो नेगेटिव ट्रांसफेरेंस में आएगा. काउंटर में कि दोनों फीलिंग्स अपनी दो पर्सन्स अपनी दोनों तरफ से फीलिंग्स ट्रांसफ़र हो रही है एक दूसरे की तरफ, तो वो काउंटर ट्रांसफेरेंस होगा. ठीक है,
उसके बाद है जी हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म भी एक थेरेपी है जो कि साइकोएनालिसिस वालों ने, फ्रॉइड ने यूज़ की। इसको हिप्नोथेरेपी का नाम दिया अकॉर्डिंग टू हिम कि आप हिप्नोटाइज करके ये इसको टेक्निक को यूज़ किया करता था फ्रॉइड। एक चेन लेके, एक स्पेशल चेन कोई होती थी वो क्लाइंट के। अच्छा, इन टेक्निक्स के थ्रू मैं आपको बता दूं कि फ्रॉइड अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया करता था, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट शेयर नहीं करता था वो इन टेक्निक्स के थ्रू सामने लेके आता होता था और फिर अपने पेशेंट्स का, अपने क्लाइंट्स का ट्रीटमेंट किया करता था। इसी तरह ट्रांसपेरेंस पहले हमने देखी, फिर हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी। वो अपने एक चेन अपने क्लाइंट को दिखाया करता था, उसको कहा जाता था कि आप इसको फोकस करो, और उसको कहता था कि आप सो रहे हैं। यानी इसका मकसद क्या होता था, पर्पस इस थेरेपी का था कि उसके माइंड को अपने कंट्रोल में करना, और मतलब जो आप उगलवाना चाहते हो वो आपने आपसे रिवील कराना, उस इंफॉर्मेशन को जो उसके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन रही है, उसके वो शेमफुल थॉट्स, वो मेमोरीज जो वो छुपाना चाह रहा है वो सामने लाना, इसका पर्पस होता था टेक्निक्स का, ठीक है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ ड्रीम। उसके बाद है पहले हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन। ये फ्री एसोसिएशन यहाँ पर बताई हुई है। फ्री एसोसिएशन क्या है? फ्री एसोसिएशन is a psychoanalytic therapy. In this therapy, a therapist asks a person in therapy to freely share thoughts, words, and anything else that comes to mind. यानी पेशेंट को, क्लाइंट को कहा जाता था कि जो कुछ आपके माइंड में आ रहा है आप कंटिन्यूसली बोलते जाओ। ये फ्री एसोसिएशन, उसको फ्री हैंड दिया जाता था कि आप बस कंटिन्यूसली बोलते जाएं जो भी आपके माइंड में आता जा रहा है। ठीक हो गया। इसी में एक टर्म यूज करता था स्लिप ऑफ टंग की फ्रॉइड, कि जब एक पेशेंट फ्लुएंटली बोलता जाता था तो वो कहीं ना कहीं अपने उसमें वो रिवील कर देता था अपनी वो थिंकिंग, अपने शेमफुल थिंकिंग, अपने शेमफुल कोई आइडियाज, कोई मेमोरी, कोई डिजायर्स वो जरूर रिवील कर देता था, शेयर कर लेता था कंटिन्यूसली बोलने में, जो वो नॉर्मल रूटीन में नहीं शेयर करना चाहता था। फ्रॉइड यूज दिस टर्म स्लिप ऑफ टंग। इन फ्री एसोसिएशन ही यूज्ड अ टर्म स्लिप ऑफ टंग, कि जब एक पेशेंट कंटिन्यूसली बोलता जाता है तो वो उस पॉइंट को भी शेयर कर बैठता होता था जिसको वो नॉर्मली बताना नहीं चाहता था, जिसको वो हाइड करता होता था। ठीक हो गया। एक टेक्निक ये थी फ्री एसोसिएशन, ट्रांसफेरेंस, हिप्नोटिज्म, फ्री एसोसिएशन। नेक्स्ट है जी एनालिसिस ऑफ ड्रीम। एनालिसिस ऑफ ड्रीम, ये भी एक टेक्निक जो कि फ्रॉइड यूज करता था। ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस क्या था? ड्रीम एनालिसिस बेसिकली एक ऐसी टेक्निक थी इसमें ड्रीम्स के थ्रू क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था। इट्स अ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स is the royal road to knowledge of the unconscious activities of mind. ठीक है, यानी ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया जाता था, उसका एनालिसिस किया जाता था ताकि जो प्रॉब्लम है वो सामने आ सके। There are two types of dreams: manifest content and latent content. According to Freud, there are two types of dream: manifest content and latent content. अब manifest content क्या होता है? The manifest content of a dream includes
the actual images, thoughts and content contained within the dream. The manifest content is the elements of the dream that we remember upon awakening. ये वो कंटेंट होता है, वो हमारे ड्रीम्स का वो हिस्सा होता है जो हमें जागने के बाद भी याद रहता है. हम कोई ख्वाब देखते हैं तो हमें उसका कुछ पार्ट याद होता है, कुछ हम भूल जाते हैं. तो मैनिफेस्ट कंटेंट अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड कि वो कंटेंट होता है जो हम याद रखते हैं. कोई भी इमेजेस हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, कोई भी कंटेंट हो सकता है ये, ठीक है. और लेटेंट कंटेंट क्या होता है? इट इज द हिडन साइकोलॉजिकल मीनिंग्स ऑफ द ड्रीम. इट इज सप्रेस्ड एंड हिडन by the subconscious mind in order to protect the individual from thoughts and feelings that are hard to cope with. अब latent content क्या होता है कि जिसको हम खुद भी याद करना नहीं चाहते, जिसको हम खुद भी मेमोराइज नहीं करना चाहते, अपने कॉन्शियसनेस में नहीं लाना चाहते. वो क्या है? लेटेंट कंटेंट. यानी वो फीलिंग्स, वो थॉट्स, वो मेमोरीज जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, इवन यू डोंट वांट टू शेयर विद योरसेल्फ. तो ये वो कंटेंट होता है लेटेंट कंटेंट. ठीक है, ये थी जी टेक्निक्स ऑफ साइकोएनालिसिस. और इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये मैंने आपको मेन कर बता दी हैं. इसको सुनें, समझें. कोई भी क्यूरीज हो, you can ask on WhatsApp group. बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.